ओके धन्यवाद। साडे प्यारे भाई बहनों, बच्चों, प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे और वो तुहानू हर तरह नाल संभाले। अज फिर तुहाडी सेवा विच जो लॉकडाउन के द्वारा वचन की सेवा चलती रही है, अज फिर मैं तुहाडे सामने हाजिर। अज का साडा टॉपिक है द लाइफ ऑफ मोसेस, जाने कि मूसा का जीवन। तो अज असी मूसा के जीवन नूं लैण लई जा रहे हाँ कि वो किस तरह इसराइल विच पैदा होया और अमराम और योबेक दे घर विच उसका जन्म होया। मेरे अजीजो, इस तो पहला कि मूसा के जन्म के बारे मैं तुहानू दसां, मैं तुहानू एक गल दसनी चाहुंदा हाँ और वो विशेष है। जे तुसी इस गल दे उत्ते ध्यान दिओ तो मैं जरूर तुहानू वो गल वचन च लिखी हुई पढ़ के सुणाउंदा। लिखिया, फिरौन डर गया। वचन कहंदा, आओ असी उन्हां नाल हिकमत नाल वरतीए। मूसा कहंदा भी आओ, माफ करना, फिरौन कहंदा भाई आओ असी इसराइल दे नाल हिकमत दे नाल वरतीए। अजिहा ना होवे कि वो होर वध जाण अते इउं होवे कि जद लड़ाई आ पवे तां साडे वैरियां दे नाल मिल के अते साडे विरुद्ध लड़न, फिर वो इस देश तो उतां चले जान। यह डर फिरौन नूं सता रहा सी, क्योंकि इसराइली वधदे ही चले जा रहे सन। इसराइली वधदे चले जा रहे सन और ये गल इसराइलियां दे वादे दी फिरौन नूं डरा रही सी। 11वीं आयत मैं तुहाडे सामने पेश करन लग्या हाँ और लिखा है, तां उस उन्हां दे उपर बेगारियां दे कोरड़े ठहराए जिहड़े उन्हां दे भारां नाल जिच करदे अते उन्हां फिरौन लई फितोम अते रामसेस भंडार दे नगर बनाए। मेरे अजीजों, मैं पहली जून 2012 नूं सनई नूं पार करते हुए सीना पहाड़ वाल नूं असी गए और उतों साडी 1:30 बजे बस चल पी और मिस्र पुलिस की गड्डी अगे अगे सी और साडी बस पिछे सी। और ये मैं दसना चाहता कि जून 1 तारीख सी और रात के 9 बजे असी कहरा के अंदर पहुंचे और जदों कहरा के अंदर पहुंचे तो रात पै चुकी सी। सुबह सवेर असी सारा ग्रुप और साडी गाइड मिसेज आशा राठौर वो सानू लैके पैरामिड विखाउण दे वास्ते गई और आराम से हुण
ਟੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਈ। ਰਾਮਸਿਸ ਔਰ ਫੇਤੋਮ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਰੜੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਬਰਾਨੀ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਫਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫੂਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਇਬਰਾਨਣਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਈਪੁਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੜੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਬਾਪ ਅਮਰਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਬੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮਰੀਅਮ ਸੀ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਰੂਨ ਸੀ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੂਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਯੋਬੇਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰਾਮ ਰੋ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅਮਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਅਮਰਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਯੋਬੇਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰਆਉਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਕਾ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਯੋਬੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਾੜ ਨਾਲ ਲਿਪਾਂਗੀ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਵੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੂਚ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੁਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਾ ਛੱਡੀ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਿਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟੋਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੀ ਜਾ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਯੋਬੇਕ ਦੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਰੀਅਮ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਸਭ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਅਸਲ 'ਚ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੀਜੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਦ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਇਬਰਾਨੀ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਰੀਅਮ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਗਈ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਦੌੜ ਕੇ ਆ। ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
बेगार सी। उस वेले एक होर माहौल सी। जद मूसा फिरौन दे घर विच फिरौन दी बेटी दे कोल चला गया, ये एक माहौल है। और जिथे मूसा वधिया पढ़िया है, वधिया पढ़ लिख गया, और ये 40 साल उसकी बड़ी खुशी के दिन सन। पर वो अपने लोगों नूं उन्हां दी गुलामी तो छुड़ाउणा चाहुंदा सी। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। जद इस तरह हो ना सकिया और उसने मतलब लड़ाइयाँ सीखियां और एक मिस्री नूं मार दिता। उन्हें सोचा इसराइली बड़े खुश हो जाएंगे, और फिर असीं वेखते हाँ कि उन्होंने रेत विच दब दिता। और फिर दूसरे दिन दोने इब्रानी लड़ रहे सन, और मूसा ने कहा तुसी भरा भराओ तुसी क्यों लड़दे हो? और एक ने कहा तेनों साडे उत्ते मतलब किन्ने मुकर्रर कीता है? तू कल मिस्री नूं मार गया सी, अज तू फिर आ गया। इस गल तो डरदा होया मूसा मदियान वाल नूं भज गया। 40 साल फिरौन दे घर विच, 40 साल भेडां ते बकरियां चारन विच, और फिर असीं कूच तीसरे अध्याय वाल जा रहे हाँ। और लिखा है मूसा अपने सौरे जिथरो मदियानी पुजारी दे इज्जर नूं चारदा सी, उसने इज्जर नूं उजाड़ दे पिछले वाल हक दिता, अते वो परमेश्वर दे पहाड़ हुरेब कोल आया। तां यहोवा दे दूत ने एक झाड़ी विच अग दी लाट विच उसनूं दर्शन दिता। तां उसने डिठा तां वेखो ਉਹ ਝਾੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਸਮ नहीं सी हुंदी। मेरे अजीजो, मैं हुरेब दे पहाड़ के सामने खलोता, और ये करीब मैं दसना चाहता ये 12 बजे का समा सी, 12 सवा 12 का समा सी। और मैं उस झाड़ी नूं वेख रहा सी जिहड़ी अजे भी हरी है, जिहदे विच साडा यहोवा परमेश्वर बैठा होया सी, और ये झाड़ी अजे भी हरी है। और मैं झाड़ी नूं वेख रहा सी, और कमेंटरी कर रहा सी, इनू 3500 साल हो गए ने, ये अजे भी हरी है। और जद इस झाड़ी विच खुदा उतर के आया, और वो चाहता सी अज मूसा दा मसा हो जावे, और ये इस्राएल दे छुटकारे लई इस्तेमाल हो जावे। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। पढ़ना चाहता हाँ, लिखा है तां मूसा ने आख्या मैं एक पासे दी हो के जावांगा, और इस वड्डे नज़ारे नूं वेखांगा कि क्यों ये झाड़ी नहीं सड़दी। तां यहोवा ने वेख्या कि वो वेखण नूं एक पासे नूं मुड़िया है, तां परमेश्वर ने उसनूं झाड़ी विचों दी हो के पुकार के आख्या हे मूसा, हे मूसा। तां उस आख्या मैं हाजर हाँ। फिर उस आख्या इधर नेड़े ना आ, अपने पैरों तो जुत्ती ला दे, क्यों जो ये थां जिथे तू खड़ा है पवित्र भूमि है। नाले उस आख्या मैं तेरे पिता दा परमेश्वर हाँ, अब्राहम दा परमेश्वर, इसहाक दा परमेश्वर अते याकूब दा परमेश्वर है। जद यहोवा परमेश्वर बोल उठा, और मूसा मुँह ते मुँह डिग पिया। और जब मुँह ते मुँह डिग पिया,
और सोच रहा सी मैं बस हो गया। लेकिन प्रभु तुहानू किरपा दवे। मैं दसना चाहता कि 7वीं आयत पढ़नी चाहता। यहोवा ने आख्या, मैं अपनी प्रजा दी मुसीबत नू जिहड़ी मिस्र विच है सचमुच वेख्या और उन्हां दी दुहाई उत्ते उन्हां दे बेगार कराउण वालियां दे कारण सुनी, क्यों जो उन्हां दे दुखां नू मैं जानदा। मेरे अजीजो, जदों असीं चौथा अध्याय पढ़दे हां और पहली आयत दे विच आउंदे हां ते मूसा दे नाल गल्लां हो गईयां ने और यहोवा परमेश्वर पूछ रहा है। तां मूसा ने उत्तर दिता कि वेख, ओ मेरी प्रतीत ना करनगे। खुदा उन्हां कोल घल्लना चाहुंदा सी। मूसा कहंदा उन्हां इस्राएलियां ने मेरी प्रतीत नहीं करनी। जिस तरह अज भी लोग सच्चे वचन की प्रतीत नहीं करते पर अपनी इच्छा नू पूरा करना चाहते हैं। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा दवे। ते मैं दसना चाहता कि मूसा ने कहा मेरी प्रतीत नहीं करनगे जे मैं चला गया। दूसरी आयत विच यहोवा परमेश्वर ने उसनू आख्या, तेरे हाथ विच की है? उस आख्या, टांगा। ता उसने आख्या, इस नू धरती उत्ते सुट दे। ता उसने धरती उत्ते सुट दिता और वो सप बन गया अते मूसा उहदे अगों भज्जा। यहोवा ने उन्होंने आख्या, अपना हाथ वधा के उन्होंने पूछों फड़ लै। तां उसने अपना हाथ वधा के उन्होंने पूछों फड़ लिया अते उहदे हाथ विच टांगा बन गया। मेरे अजीजो, ये टांगे दे अंदर निशान सन। जिथे मूसा मसा हो गया उथे ओदा टांगा भी। प्रभु बहुत वड्डी किरपा दवे। हुण इस दिन तो असी देखते हाँ कि जदों ही उसने तीसरे अध्याय दे विच जदों ने वेख लिया है झाड़ी नूं बलदियां, खुदा ने मूसा नूं अपने लिए एक नबी ठहरा लिया। और जदों भी खुदा बोलेगा मैं हाथ उठा के कहना मूसा दे विचों दी बोलेगा। और जदों भी कदे अजीब अनोखे काम करेगा और ये मूसा दे टांगे दे द्वारा ही अजीब अनोखे काम होणगे। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। खुदा अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करने की शक्ति रखता है। मेरे अजीजो, प्रभु के नाल जुड़े हुए भाई बहनों, प्रभु तुहानू बड़ी वड्डी बरकत दवे। मैं दसना चाहता हाँ कि हुण इस ढांगे दा यहोवा दा सामना, मूसा दा सामना और मूसा दे हाथ विच ढांगे दा सामना फिरौन दियां फौजां भी नहीं सी कर सकती। कोई नहीं सी उन्हां दा मुकाबला कर सकता, क्योंकि खुदा मूसा दे विच उतर आया होया सी। इस करके मेरे अजीजो, हुण असीं देखते हाँ कि मूसा और हरून दोवें जा रहे ने। वो जिहड़ा रथां दा देश सी, वो जिहड़ा घोड़ियां दा देश सी, वो जिहड़ा बड़ा तगड़ा देश सी, वो फिरौन जिहड़ा आले दुआले दे लोकां नूं
ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ मूसा दे परमेश्वर दा यहोवा परमेश्वर दा हुण फिरौन कदे मुकाबला कर नहीं सकेगा। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। मूसा दी लाइफ ऑफ मोसेस, असी इसका दूसरा भाग कल लवांगे। आओ असी हुण अखां नूं बंद करांगे कि खुदा दे अजीब अनोखे काम जिहड़े ने वो किस तरह शुरू होए। मूसा 80 साल का हो गया है जदों वो मसा होया है और 40 साल उसने सेवा की। मूसा दे सारी उम्र 120 साल है। और आओ असी वेखिए कि मूसा ने किस तरह अपने लोगों को मिस्र दे विचों बुलाया। बाकी दा हिस्सा असी कल नूं वेखांगे, दूसरा भाग। और ये पहला भाग है जिहदे विच तुसी खुदा दे अजीब अनोखे कम्मां नूं वेख्या है और खुदा दे सेवक मूसा नूं वेख्या है, जिसका नाम भी उहदे माँ बाप ने नहीं रखिया बल्कि फिरौन दी बेटी ने रखिया। और तुसीं इहदे तो हिसाब ला सकदे हो कि इजराइल किन्ने दुखां दे विच लंघ रिहा सी, किन्नियां मुश्किलां दे विचों दी लंघ रिहा सी। मैं हाथ उठा के कहना उन्हां सारियां मुश्किलां दे विचों खुदा ने इजराइल नूं बाहर कढ लिया। और मूसा असल विच छुटकारा देण वाला सी। काहदा छुटकारा? मिस्र दे विचों इजराइल दा छुटकारा देण वाला मूसा है। और खुदा मूसा दे विचों दी हो के बोलदा रहा, मेरे ते तुहाडे ने भी एक छुटकारा देण वाला है। जदों असी पापां गुनाहां बदियां बुराइयां दे अंदर सी और असी जन्म तो ही पापी सी और असी बच नहीं सी सकदे, पर असी देखते हां साडा भी एक छुटकारा देण वाला धरती दे उत्ते आया और वो साडा खुदाबंद यीशु मसीह है, जिसने अपने लहू दे नाल सानू छुड़ा लिया है और जिसने अपनी कृपा दे नाल सानू बचाया है। अज दे असी निश्चावान हाँ ते यीशु दे बहाए हुए लहू दे नाल और उसकी बड़ी कृपा दे नाल और उसके वचन नाल जिहड़ा कदे टल नहीं सकदा। आओ असी अखां नूं बंद करांगे।